Change in profit sharing ratio. When the new partner admits in the firm, he wants to take the part of profit from the old partners. In that case, the old partners are sacrificing their profits and the incoming partner gets the share of the profit from old partners. In this case, we have to change the profit sharing ratio, but two conditions are there. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर हो सकता है. इन योर क्वेश्चन दे आर गिविंग ओल्ड रेशियो as well as they are providing the new ratio. And second one, new sacrificing ratio calculate करना होगा. So on the basis of new profit sharing ratio, when new partner admits in the firm, gets the share from the firm. In such case, I am giving one example. जब वो अपना हिस्सा फर्म से लेगा तो बाकी के जो पार्टनर्स होंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज हो जाएंगे. इस केस में क्या होगा, जैसे आप ले लें ए एंड बी आर द पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3. 5 + 3 8 होगा, तो हम ये कर देंगे 3/8 5/8 एंड दिस इज द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. When the C admits in the firm and takes the 1/4 share of profit, in such case, what A and B will get it. So in such case, we will assume the whole profit is 1. Total profit is 1. Remaining profit is 1 minus 1/4 जो हमने C को दे दिया है. इट शुड बी डिडक्टेड. 1 minus 1/4 करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 आ जाएगा. आफ्टर दिस दे आर गेटिंग द प्रॉफिट फ्रॉम 3/4. ओके, सो इन सच केस दे विल गेट न्यू रेशो फॉर दीज पीपल. ए के लिए होगा 5/8 into 3/4. Okay, and this one for B 3/8 into 3/4. So 5 3s are 15/32 and 9/32, and this should be इक्वलेंट रेशो. 1/4 को भी हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे 1/4 into 8/8. ठीक है, तो ये कितना हो गया 8/32. मीन्स ये आपका हो गया जो न्यू रेशो होगा. ए के लिए 15/32, बी के लिए 9/32 और 8 के लिए सी के लिए 8/32. 15 plus 9 24, 24 plus 8 32, means the denominator is same for all. So this is the new ratio when the partner gets the share from the firm. Now we'll go for the second case. So in this case, when the partner gets the profit from the firm, old ratio is the same ratio. Similarly, you will check 5 and 3 and 15 and 9 again makes the same proportion. Okay, 15 and 9 are the same as previously. On the basis of second case, when the new partner gets his share from old partners in a particular ratio, अगर जो incoming partner है वो पुराने पार्टनर से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट लेगा प्रॉफिट का, तो उस कंडीशन में हम किस तरह सॉल्व करेंगे. विल टेक एन एग्जांपल लाइक ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3 and 5. So old ratio is again 5/8 and 3/8. C admits in the firm and take the profit of 1/5 from the firm, but individually he takes from A and B. A से 1/10 लेगा और B से भी 1/10 लेगा. When the partner is taking the profit, इसके profit का 1/10 from A and 1/10 from B, means half of the part he will take from A and half part he will take from B. In such situation, what we have to do? In such case, old ratio is given,
This is the sacrifice by the A and B. So what we have to do, अगर आपके पास ओल्ड रेशो दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग दिया हुआ है, तो न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशो माइनस sacrificing ratio to get the new ratio. A's new ratio will be, A का प्रीवियस क्या था 5/8 माइनस 1/10 इक्वल्स टू डिनोमिनेटर हमारा ये जो हो जाएगा LCM 40. In such case 5 5s are 25 and 4, it means 40. Second one, B's share, B's new 21 upon ratio will be 3/10 minus 1/10, 3/8 minus 1/10, again LCM 40, 5 3s are 15 minus 1, 4, it means 11 upon 40. Clear? Now we have to convert 1/5 in denominator 40. So make the equivalent fraction, means 8 upon 8, that is 8 upon 40. According to this, the new ratio will be A ratio B ratio C. 5/8 minus 1/10, take the LCM 40 आ जाएगा. 5 5s are 25 and then 4, it means 21 upon 40. Similarly for B 3/8 है, 3/8 में से 1/10 माइनस करेंगे, 15 minus 4 11 upon 40 and we have to convert it into the equivalent fraction. डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हम दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके 8 upon 40 कर लेंगे. नाउ आवर न्यू रेशो इज A 21, B 11 and C 8. This is the new ratio for the new firm. Now case C, when the new partner comes in the firm and taking the profit by sacrificing in a different fraction in favor of the incoming partner. Means जब नया पार्टनर आ रहा है और उसके फेवर में ओल्ड पार्टनर्स डिफरेंट फ्रैक्शन में प्रॉफिट पार्ट को सेक्रीफाइस करेंगे, तो उसके लिए हम किस तरह करेंगे. Suppose we are taking one example, H and V are partners, they are sharing profits in the ratio 5:3. As sacrificing ratio में हम देखेंगे H sacrifices 1/20 of his share in favor of A incoming partner के लिए and V sacrifices 1/24 of his share in favor of A. In that situation, how we will calculate the new ratio? एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑफ हिज शेयर जब भी होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. इनका जो ओल्ड रेशो हुआ 5/8 एंड 3/8 ओल्ड रेशो. न्यू रेशो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो. न्यू रेशो इक्वल्स टू old ratio minus sacrificing ratio, but we are not having the sacrificing ratio right now. So what we have to do, so we'll calculate the sacrificing ratio of H and R. sacrificing ratio में H का sacrificing ratio होगा 1/20 of 5/8. 5/8 का 1/20. In such case, it is 4 times, means 1/32. After this, we sacrifice 3/8 into 1/24, means 1/64. Now we have the share of A. A का जो टोटल शेयर होगा
वो किस तरह से हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे? ए का जो शेयर होगा वो होगा 1/32 प्लस 1/64 इक्वल्स टू, एलसीएम जब हम लेंगे तो ये हो गया 64, 2 प्लस 1 equals to 3/64, and the ratio we have to calculate new ratio on the basis of new ratio equals to old ratio minus sacrificing ratio. Sacrificing ratio हम निकाल लेंगे 5/8 minus 1/32, LCM लेंगे 32 आ जाएगा. 32 means 4 5s are 20 minus 1. It means 19/32. And in this case, for H and V, 3/8 minus 1/64 equals to 64 हमारा LCM हुआ. 8 3s are 24 minus 1. It means 23/64. Clear? So make it 64. इसके लिए हम क्या कर देंगे? 32 2s मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38/64 हो जाएगा. न्यू रेशो विल बी 38/23/3. न्यू रेशो will be for H, V and A is 38/23/3. Sacrificing ratio. In case of admission, when the new partner admits in the firm, in such case he is gaining the profit from the existing partners. तो old partners से जो वो रेशो लेगा उस अकॉर्डिंग old partners are sacrificing in favor of new or incoming partner. तो sacrificing ratio means the ratio which existing partners are giving to the new or incoming partner is known as sacrificing ratio. Sacrificing ratio has different conditions when new partner gets the share without any details of sacrificing. बिना सेक्रीफाइस किए हुए अगर कोई रेशो दिया हुआ है, बिना सेक्रीफाइसिंग की डिटेल के अगर न्यू पार्टनर आता है तो उनका रेशो किस तरह से निकाला जाएगा? When new partner gets his share without any details of sacrificing means what we have to understand that the old partner has sacrificed their profit in the old ratio. Like we have to talk about the profits. A, B and C are the partners. In such case, they are sharing profits in the ratio 3:1 and C comes for the 1/8 share of profit. Okay. So in such case 3 plus 1 4 1/4 ये इनका ओल्ड रेशो हो गया. ठीक है. अब हम बात करते हैं, या तो हम डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं या ओल्ड माइनस न्यू रेशो कर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल देंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप से चलते हैं कि हमने ये मान लिया कि 1/8 शेयर दिया है. टोटल जो प्रॉफिट होता है फर्म का वो 1/1 होता है. 1 माइनस 1/8 कर देंगे, सी का शेयर माइनस कर देंगे. उससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, वो 7/8 होगा. एलसीएम 8 लिया, 8 माइनस 1 7/8. अब जो ए और बी को प्रॉफिट मिलने वाला है विच इज़ फ्रॉम द 7/8. सो न्यू रेशो what how to calculate 3/4 of 7/8 and B का 1/4 into 7/8. In such case 21/32 and 7/32 और इसका भी हम 1/8 को
जब करेंगे तो 1/8 इंटू 4/4, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर आपको क्या करना है 32 लाना है, तो ये हो जाएगा 4/32. सो दिस इज़ द रेशो, मीन्स 21 प्लस 11 32 होता है, ये इनका न्यू रेशो आ जाएगा. हाउ टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो. सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. जो आपके पार्टनर्स हैं ए और बी, उन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे. सेक्रीफाइसिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये इनका नया रेशो है, ये इनका ओल्ड था, तो ए के केस में ए का सेक्रीफाइसिंग होगा 3/4 माइनस 21/32. एलसीएम लिया हमने 32, 8 3 24 माइनस 21, इट मीन्स 3/32. ओके. एंड इन केस ऑफ बी का ओल्ड रेशो जो था 1/4 माइनस न्यू रेशो 7/32, LCM again 32, 8 minus 7 or 1/32. It means sacrificing ratio of A and B is 3:1. और अब इसका जब रेशो निकालेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3/4:1/4 होगा. इसके अल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं, हम उनमें से किसी भी अल्टरनेटिव मेथड को भी ले सकते थे. हम डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते थे 3/4 इंटू 1/8 करके, और इस तरह से सेक्रीफाइसिंग को माइनस करके भी हम न्यू रेशो निकाल सकते थे. व्हेन न्यू रेशो इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ admission of a new partner. So in such case we will take an example to understand. A, B and C are partners. In this case A and B are sharing the profit in the ratio of 3:2. It means 3/5 and 2/5. After this is the old ratio which is already given, but at the time of admission of C, they have decided to share the profit in the ratio 5:3:2. It means 5 plus 3 8 plus 2 10, 5/10, 3/10, 2/10. That is new ratio. How to get the gaining or sacrificing ratio? So gaining is already given, but sacrificing ratio we have to calculate. In such case, sacrificing ratio equals to old ratio minus new ratio. As per this condition, A old ratio is given 3/5 minus 5/10. LCM लेंगे. In such case, LCM is 10. 6 minus 5, 1/10 sacrificed by A, and B 2/5 minus 3/10 equals to LCM 10, 2 2s are 4 minus 3, it means 1/10. Now we have to check whatever A and B has sacrificed, it is equal and to the C's share. नए पार्टनर का जो प्रॉफिट है, शेयर है, वो उतना ही होना चाहिए जितना कि ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है. So 1/10 plus 1/10 equals to 2/10. Now it is verified. Third case, when old partners are sacrificing share in favor of new partner or incoming partner. Suppose we will take an example. P and Q are the partners. They and R comes in the firm. Means R is the new partner. They are sharing 7:5, and he takes from P 1/12 and Q 1/6. In this way, R has to take the profit. Firstly, we have to check 7/12 and 5/12. That is old ratio. Now we have a sacrificing ratio. How to calculate the new ratio? New ratio equals to
old ratio minus sacrificing ratio. In this case, P has to receive 7 by 12 minus 1 by 12. It means 6 by 12. This is the new ratio for P. Now we have to calculate for Q. Q has to receive 5 by 12 and he has sacrificed 1 by 6 in favor of R. In this case, take the LCM. Now LCM is 12. 5 minus 2 times, it means 2. 3 by 12. That is the new ratio for Q. Now we have to calculate R's share. R का जो न्यू रेशो होगा, न्यू रेशो फॉर R, I will write here only 1 by 12 plus 1 by 6. Now take the LCM 12. 1 plus 2 equals to 3 by 12. So we can say new ratio A, B and C has 6 by 12, then 3 by 12 and 3 by 12, or 6:3:3. This is the way we have to calculate the new ratio and the sacrificing ratio of the existing or old partners. Accounting treatment of goodwill as per Accounting Standard 26. When the new partner admits he takes the share of profit from the firm, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड पार्टनर्स से प्रॉफिट शेयर ले रहा है, तो उसके अगेंस्ट नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर्स के फेवर में गुडविल का पेमेंट करना होगा. इट मीन्स जो नया पार्टनर आएगा वो या तो गुडविल लेकर आएगा कैश के फॉर्म में या प्राइवेटली देगा. अगर इन केस प्राइवेटली पेमेंट कर रहा है गुडविल का तो उस समय कोई एंट्री नहीं की जाएगी. बट इफ़ ही इज़ गिविंग इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ काइंड, or if he is unable to bring the amount of goodwill, in such cases what we have to do, I am showing one by one all the ways or cases how the new partner brings the amount of goodwill. So we will start the method. Goodwill is paid by the new partner to the old partners privately. Then in that case we will not do any entry. No entry is required in case of पेमेंट ऑफ गुडविल इन फॉर्म ऑफ प्राइवेटली. मीन्स जब नया पार्टनर आकर के कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को प्राइवेटली गुडविल दे देता है तो उस केस में कोई एंट्री नहीं होगी. बट व्हेन द गुडविल ब्रॉट इन केस ऑफ ब्रॉट इन कैश और चेक and the goodwill remains or retained in the business, means when the new partner comes in the business he brings the goodwill for the business, और हम goodwill को premium for goodwill भी बोल सकते हैं. and this amount should be retained in the business, यानी कि जो existing partners हैं या जो old partners हैं वो उस goodwill के amount को withdraw नहीं करेंगे. in this case how we'll do the entry? First one, I will tell you, the first entry is when he brings in form of cash or check, तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक. अगर बैंक चेक होगा तो बैंक लिखेंगे वरना कैश लिखेंगे. अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ओके. And being goodwill brought by the admitted partner or new partner. After it जो भी अमाउंट वो लेकर आएगा उसकी हम एंट्री कर देंगे. Either it is calculated on the basis of firm's goodwill. Suppose फर्म की गुडविल 5 लाख रुपीज़ है, 1/5 शेयर के लिए आया है तो 1 लाख रुपीज़ इसका पार्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी.
अब गुडविल जो लाई गई है, इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है, तो रिवार्ड किसके लिए है? इन फेवर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो उसके लिए हम एंट्री कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट with the same amount to sacrificing partners capital oblique current account। अब जैसा भी इसमें दिया हुआ हो क्वेश्चन में उसके हिसाब से, या हम क्या कर सकते हैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट्स। सेक्रीफाइसिंग ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कभी कभी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें से यदि कोई सेक्रीफाइस नहीं करता है तो उसे गुडविल नहीं दी जाएगी, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्रीफाइसिंग रेशो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल अमाउंट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। थर्ड केस, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन काइंड। जब कोई नया पार्टनर आता है, जैसे सपोज कोई सोल प्रोप्राइटर है, वो भी आपकी पार्टनरशिप में ऐड होना चाहता है, जुड़ना चाहता है, इन दिस केस व्हाट ही हैज़ टू डू, ही हैज़ टू ब्रिंग हिज ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ along with the assets and liabilities, he will join your partnership. In such case he has to brought the goodwill or capital in form of assets। तो उस समय पर क्या एंट्री करेंगे हम, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स के नाम लिखेंगे अपन जो जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल अकाउंट किसका होगा, न्यू पार्टनर का होगा, ठीक है। और उसके अलावा टू प्रीमियम फॉर गुडविल होगा। इसे हम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और टर्म्स और कंडीशंस। आफ्टर दिस गुडविल शुड बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, एंट्री नंबर 2, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital oblique current accounts। Clear? So in such case we can't able to write directly, क्योंकि assets है तो कैश और बैंक नहीं आएगा, जो कैपिटल के फॉर्म में और जो प्रीमियम के फॉर्म में दिया है, और जो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल होगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशो के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फोर्थ पैटर्न, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ द गुडविल in form of cash or check and fully or partly withdrawn by the old partners। means जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है और ओल्ड पार्टनर्स उस गुडविल अमाउंट में से पार्टली या फुल्ली अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, तो आप किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट एंट्री इसकी होगी जब वो गुडविल लेकर आ रहा है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये उसके गुडविल अमाउंट की होगी। कैपिटल अगर है तो टू पार्टनर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख देंगे, ये भी हम कर देते हैं, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो भी अमाउंट वो लेकर आया। अब कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल शुड बी credited to old partners capital account in the sacrificing ratio। तो second entry premium for goodwill account debit to old, या हम कह सकते हैं
sacrificing partners कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब क्या होगा, जो गुडविल लेकर आया है ये वाला अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा एज पर देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। आफ्टर इट व्हेन द अमाउंट इज क्रेडिटेड आउट ऑफ दिस अमाउंट द पार्टनर्स आर विड्रॉइंग आइदर फुल्ली और पार्टली। या तो वो पूरी गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे या वो क्या करेंगे कि जितना अमाउंट है उसका हाफ या 40% और 50% एज पर द कंडीशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर विड्रॉइंग द गुडविल अमाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश, जैसे भी वो विड्रॉ करेंगे उसके हिसाब से हम एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड एंट्री जो होगी वो गुडविल के विड्रॉ करने की होगी। फर्स्ट एंट्री व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ द गुडविल, सेकेंड अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स or sacrificing partners capital accounts, and after this the amount is withdrawn by the old partners. So we have to do the third entry, old partners capital oblique current account debit to bank or cash. Fifth one, when new partner cannot bring प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर हम ये देखते हैं कि नया पार्टनर जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर नहीं आ पा रहा है, मीन्स ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ द गुडविल ऑफ हिज शेयर, इन सच केस वी हैव द एंट्री। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वो लेकर नहीं आ रहा है, तो जब नया पार्टनर लेकर नहीं आएगा तो उस कंडीशन में हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी गेनर टू सेक्रीफाइजर, गेनर डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइजर क्रेडिट हो जाएंगे। तब हमारी एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, आप इसे गेनर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये गेन कर रहा है, टू ओल्ड या सेक्रीफाइसिंग लिख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। क्लियर, इसमें यहाँ गेनर हो सकता है और यहाँ सेक्रीफाइजर हो सकता है। इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। मींस नया पार्टनर कैश नहीं लेकर आया है इसलिए फर्स्ट एंट्री नहीं होगी, सेकेंड एंट्री होगी क्योंकि वहाँ गुडविल नहीं आई है तो नए पार्टनर को डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा। नाउ द सिक्स्थ केस, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग पार्ट ऑफ गुडविल in form of cash, clear, either in cash or check, जो भी है, it means he is unable to bring the full amount of goodwill। जो उसके शेयर का गुडविल है वो पूरा गुडविल नहीं ला रहा है, सपोज 40% कैश लेकर आ रहा है या चेक लेकर आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारा यही होगा, कैश अकाउंट डेबिट, सपोज 50% लेकर आया है तो 2, अगर चेक है तो बैंक लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी जितना भी कैश लेकर आया है, और सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
अब क्योंकि ये पूरी गुडविल नहीं लाया है तो रिमेनिंग पार्ट के लिए इस पर्टिकुलर न्यू पार्टनर का कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा। सपोज 50% अमाउंट लेकर आया है तो रिमेनिंग 50% के लिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। जितना अमाउंट गुडविल का फिक्स हुआ है उतने के लिए हम उसका जितना कैश लेकर आया है और रिमेनिंग पार्ट के लिए उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट भी हो सकता है।